Hi friends, in the previous lecture we had seen that every body exerts force on every other body by virtue of its mass, and that we call as gravitational force. This force is strictly attractive in nature. This is a sort of fundamental force. Now we know that every force has an acceleration related to it. Chapter number 5 में पढ़ा था कि F is equal to ma, so every force has an acceleration related to it. Now if this force is gravitational force, then the acceleration related is called gravitational acceleration small g. यानी gravitational acceleration को define कैसे करेंगे? It's an acceleration arising in the body due to gravitational force of Earth. It's an acceleration arising in the body due to gravitational force of Earth. That's called gravitational acceleration. In this lecture, we'll be studying in details about gravitational acceleration. You will be surprised that gravitational acceleration मतलब क्या? It is just 9.8 meter per second square. It's a fixed value. No, it is not so. That was just a limited portion for your knowledge up to standard 10th. Now as you are coming to 11th standard and physics is going into more details, so now we will discuss about gravitational acceleration. What it is, how to find it and its expression, then different forms of its formula, then we'll be seeing its variation with height and depth, and finally with latitude. We'll take an idea about change in g with latitude on the surface of Earth. Okay, तो ये सब बातें यहाँ पे करने वाले हैं. तो चलो सबसे पहले चलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बारे में कुछ बातें. तो पहले उसका डेफिनेशन. The acceleration arising in the body due to gravitational force of Earth is called gravitational acceleration. Acceleration arising in the body due to gravitational force यानी F is equal to Fg. अगर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन को हम लोग g बोलेंगे. ये डेफिनेशन हो गया इसका. यानी एक्सेलरेशन arising in a body due to gravitational force of Earth is called gravitational acceleration. चलो इसका फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं. लेट्स ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल g. तो उसके लिए लेट्स सपोज दिस अर्थ, ये अर्थ है. अर्थ का रेडियस r ही बोल देते हैं. अर्थ का मास m ही बोल देते हैं. अर्थ के सेंटर से एट अ डिस्टेंस r suppose a body of mass m is lying. See, as earth is a huge solid sphere, we have to take its center of mass यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव. तो अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का डिस्टेंस r from the center of earth, बॉडी का मास m है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास m lying at a distance r from center of earth. अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे हुए बॉडी पे लगता हो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, तो दैट इज गिवन एज F इज इक्वल टू. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू g इनटू एक मास अर्थ का, दूसरा मास उस बॉडी का, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज. बराबर है. एज दिस फोर्स क्रिएट्स मोशन, F इज इक्वल टू ma लगेगा. नाउ हियर F is a gravitational force, therefore acceleration will be g. So therefore we write it as Fg is equal to mg. Gravitational force Fg, ये g सफिक्स में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. तो Fg इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग और कंपेयरिंग 1 and 2, व्हाट वी गेट इज लेफ्ट साइड सेम है. तो mg इज इक्वल टू gme m अपॉन r स्क्वायर. ये m तो चला, तो g का फॉर्मूला क्या बना? g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर. फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे फॉर्मूला क्या है? g का जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, विच क्लियरली शोज दैट हियर g इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यानी r जैसे जैसे बढ़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज मोर इंक्रीजेस. एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, gravitational force, gravitational acceleration decreases. So as you move away from the center of the earth, the gravitational acceleration goes on decreasing. Okay, ये हमें देखने को मिला है. यानी g is inversely proportional to r square. So with the increase in r, let's say this way, इसके बेस पर सही लिख देते हैं रिलेशन g proportional to 1 upon r square. न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम का रिलेशन है ये न्यूमेरिकल्स में. Thus with increase in r, g decreases. With increase in r, g decreases. Okay. फिर आगे चलते हैं. If height of body from surface of earth, अर्थ के सरफेस से अगर हाइट इज h, यानी क्या हो गया?
हम लोग डिस्टेंस सेंटर से तो मेजर कर नहीं सकते, हम अर्थ के सेंटर में तो जा नहीं सकते, तो व्हाट वी मेजर इज नॉर्मली द हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी h है। बाकी का तो रेडियस r ही है। if height of the body from surface of earth is h, then r can be written as re plus h। r को क्या लिखेंगे, re plus h। तो therefore g at a height h will be equal to gme upon re plus h का होल स्क्वायर, gme upon re plus h का होल स्क्वायर, यानी डिपेंडिंग ऑन हाइट हो गया, बराबर है। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला जी का इन टर्म्स ऑफ हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर है। यहां पे भी क्लियरली दिख रहा है, दस विद इंक्रीज इन हाइट h g डिक्रीजेस, h बढ़ेगा तो g डिक्रीज होगा। ओके, अच्छा एक और केस लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर बॉडी तो क्या होगा, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये बॉडी कहां पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, यहां पे हो गए तो r कितना होगा, r, इन दैट केस r विल बी इक्वल टू r, बराबर है। तो देयरफॉर g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू gme अपॉन r स्क्वायर। ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम लोग ge से नोट करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल कॉल्ड एज ge, हम लोग उसको यू इंडिकेट करते हैं, बराबर है। ये हो गया अर्थ के सरफेस पे। ना ये सारी वैल्यू, ऑल द वैल्यूज ऑन द राइट साइड आर नोन। कैसे, कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। फिर मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg, ये भी हमें मालूम है। रेडियस ऑफ अर्थ इज रफली 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर हुआ। ये सारी वैल्यूज नोन है। If we substitute these values here, then we find that gravitational acceleration of surface of Earth is around 9.8 meter per second square. इतना आता है 9.8 meter per second square. This is what it comes. Okay? तो अर्थ की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज एक्सेप्ट करके ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, इसलिए ये भी अप्रोक्सीमेट है। gravitational acceleration on surface of Earth is 9.8 meter per second square. Okay? इसमें एक बात और आगे ऐड करते हैं। As Earth is not a perfect sphere, we know that Earth is flat at poles and bulging at equator, बराबर है। What we know that radius of Earth at equator is more than that on poles, क्योंकि Earth is flat at poles and bulging at equator. Earth is not exact sphere, पर यहां से poles पे थोड़ा फ्लैट है, यानी कि रेडियस यहां पे कम है, bulging at equator यहां पे ज्यादा है। Okay, so that is the situation for Earth. We very well know this. Okay, radius of Earth at poles is less than that at equator. तो इसके कारण क्या होगा, therefore G on equator will be less as compared to G on poles. यानी अर्थ के सरफेस पे भी हर जगह पे G की वैल्यू सेम नहीं है। 9.8 तो हम लोग अप्रोक्सीमेट लेते हैं, पर अर्थ के सरफेस पे इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है अर्थ का, इसलिए G कम होगा, और पोल्स पे रेडियस कम है तो G ज्यादा होगा। यानी कि as we move from equator to poles, value of G increases, and as we return from poles to equator, value of G decreases. But as this difference is negligible in comparison to 9.8, ये जो वेरिएशन है कम, negligible in comparison to 9.8, इसलिए अर्थ के सरफेस पे we take the value almost the same, 9.8 meter per second square everywhere. Okay, as the variation of this G from equator to poles is negligible, so we take almost the same for our study purposes. हमारे लिए fine, but when you are doing some sensitive experiments like launching of a rocket, programming a guided missile, उस सब में ये छोटा वेरिएशन भी इफेक्ट होता है, कंसिडरेबल होता है। तो देयर while doing such sensitive experiments, at that time we have to consider that variation also. बराबर, दो है तो एग्जांपल मैंने दिया आपको, एक तो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट एंड दूसरा प्रोग्रामिंग अ गाइडेड मिसाइल। क्योंकि गाइडेड मिसाइल को आप प्रोग्राम करो एंड जी को अप्रोक्सीमेट लेके चलोगे तो क्या होगा, एक जगह से निकला दूसरी जगह जाते जाते एक माइनर वेरिएशन भी जी में आया तो उसका डायरेक्शन बदल सकता है, तो टारगेट के बदले कहीं और जाके मिसाइल फूट सकता है, कैन एक्सप्लोड एट सम अदर प्लेस। ओके, इसलिए उसके उन केसेस में यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। बाकी इट्स फाइन, हमारे लिए तो इट्स ऑल नेग्लिजिबल वेरिएशन है, हमारे लिए तो जी की वैल्यू 9.8 हर जगह पे सेम। ओके,
सो दिस रिगार्डिंग जी। यहाँ पे हमें तीन फॉर्मूला मिले, एक तो जी का जनरल फॉर्मूला ये रहा रेडियस एक्सप्रेशन का, दूसरा इन टर्म्स ऑफ हाइट h, तीसरा फॉर सरफेस ऑफ अर्थ जी एम अपन आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया छोटा जी व्हाट इट इज एंड उसका फॉर्मूला। अब एक बात हमने देखा यहाँ पे कि ये सपोज अर्थ है, अर्थ का सेंटर, अर्थ के सरफेस जैसे से ऊपर जाते हैं एच की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए जी कम हो रहा है। सो एज यू मूव अवे जी डिक्रीजेस, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जी डिक्रीजेस। सेकेंडली एज वी गो इनसाइड द अर्थ, एज वी गो इनसाइड द अर्थ जी शुड इंक्रीज, नहीं जी डिक्रीजेस। तो सरफेस से ऊपर जाओ तो भी जी की वैल्यू कम होती है, अर्थ के सरफेस से अंदर आओ तो भी जी की वैल्यू कम होती है। तो जी डिक्रीज एज यू मूव अवे और इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहां से ऊपर जाओ तो भी डिक्रीज, नीचे जाओ तो भी डिक्रीज, मतलब जी इज मैक्सिमम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर है। तो जी इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक मार्क के एमसीक्यू में भी आ सकता है या वन लाइन क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट डिक्रीज एज यू मूव अप एंड डाउन, यानी हाइट पे भी कम होगा, डेप्थ पे भी कम होगा। ये दोनों वेरिएशन हमको पढ़ने के हैं, चेंज इन जी विद हाइट एंड चेंज इन जी विद डेप्थ, बराबर। ये दोनों वेरिएशन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसके बाद, क्लियर। बट इतना पक्का कर लो कि जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, क्लियर। तो ये हो गया छोटा जी और उसके एक्सप्रेशन के बारे में। जस्ट गो थ्रू दिस, फिर आगे चलते हैं। So next we take the variation of g with height। तो हाइट के साथ कैसे वेरी होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो उसके लिए शुरू करते हैं। वी नो दैट से क्या g is given as gme upon r square सॉरी, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया g का, बराबर। g is given as this formula। now at a height h from surface of earth, अर्थ के सरफेस से हाइट h पे देखें तो r is taken as re plus h, so therefore g at a height h will be equal to gme upon re plus h whole square। okay, let's see equation 1। फिर on surface of earth, on surface of earth we have to take r equal to re, surface of earth पे r equal to re है, तो therefore g on surface of earth will be equal to, therefore g on surface of earth, इसको g बोल देते हम लोग, g m e अपन r स्क्वायर। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये आ गया। अब टेकिंग रेशियो 1 and 2 डिवाइडिंग 1/2, तो क्या आएगा g एट अ हाइट h अपॉन जी ई विल बी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों का रेशियो ले लिया, जीएमई कैंसिल हो गया, व्हाट रिमेंस इज आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर फ्रॉम द ब्रैकेट वी आर टेकिंग आर ई कॉमन, वी आर टेकिंग आर ई कॉमन फ्रॉम द ब्रैकेट, तो आर ई बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हो क्या आएगा, एंड इट विल बी समवट लाइक दिस, तो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, अंदर हमने आर ई कॉमन निकाला तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर है। अब ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो व्हाट रिमेन्स नाउ इज, इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एच अपॉन आर ई का रेस टू -2, ऊपर ले लिया उसको, बराबर है। तो देयरफॉर व्हाट वी गेट इज g एट अ हाइट h will be equal to ge into 1 plus re by h raised to -2। ओके, ये मिला हमको, g को उधर ले लिया, राइट। नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, using binomial theorem and neglecting higher terms, using binomial theorem and neglecting higher terms, what we get is, ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बाइनोमियल थ्योरम को याद करा दो तो कुछ ऐसा था, 1 प्लस एक्स रेस्ट होल रेस्ट टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये हम लोग फिजिक्स में इतने शॉर्ट फॉर्म में इसको लेते हैं। इसका एक्सपेंशन ये
बशर्ते ये 1 एंड x इज वेरी स्मॉल, अज्यूमिंग दैट x इज वेरी मच स्मॉल एज कंपेयर टू 1, ये मान के चलना है, तो उस केस में ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड टर्म में। ओके, अब यहाँ पे आर ई प्लस एच, तो वी नो दैट, सॉरी एच अपॉन आर ई, वी नो दैट एच इज वेरी मच स्मॉल एज कंपेयर टू आर ई, so therefore h upon re will be very much smaller than 1, condition satisfied, तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो व्हाट यू गेट इज g at a height h will be equal to ge into 1, पावर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2h upon re, बराबर है। ये फॉर्मूला हो गया शोइंग वेरिएशन इन g विद हाइट। ओके, ये बाइनोमियल थ्योरम को हमने डिटेल में डिस्कस किया, एक छोटे से वीडियो में मैंने भेजा आपको, मैथ्स पे कनेक्टेड वीडियो है जो अभी लेटेस्ट मैंने आपको भेजा है, वो बाइनोमियल थ्योरम को डिटेल में डिस्कस करता है। उसके बाद यह एजम्पशन जो हम लोग फिजिक्स के लिए स्पेशली लेते हैं वो यहाँ पे अब हमने उधर उसमें देखा है। यहाँ मैंने आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया उसका कि क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन है, निग्लेक्टिंग, ये जो वर्डिंग है ना, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, तो ये लेते हैं डायरेक्टली, ये मैंने आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दिया। बाकी डिटेल में उसको हमने उस लेक्चर में, उस छोटे वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। जस्ट गो थ्रू दिस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो फिर से उसमें उसको देख लो एंड देन कम ओवर बैक। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने देखा जी वेरीज विद हाइट कैसे बता रहे हैं, तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। तो इधर क्या बोलेंगे, एज एच इंक्रीजेस, एच की वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, माइनस है ना, दिस ब्रैकेट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, जी एच डिक्रीजेस, एज एच इंक्रीज जी एच डिक्रीजेस, ये आ गया फॉर्मूला शोइंग द रिलेशन। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एट अ हाइट 10 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, एट हाइट 10 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि रफली 10⁴ मीटर हुआ। जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अर्थ का रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁶, सॉरी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखते हैं, 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं, तो g एट हाइट h comes out to be approximately 9.782 जितना आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.782। तो चेंज इन g देखो तो कितना हुआ, g एट हाइट h माइनस g, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.028 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू 9.8। ये 9.8, ये 9.782 माइनस 9.8 करो तो 0.028 आता है, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 9.8। 0.03 इज वेरी मच स्मॉल एज कंपेयर टू 9.8, इसलिए नेग्लिजिबल गिनते हैं। इसलिए हम लोग हमारे स्टडी के पर्पस के लिए जी में ज्यादा वेरिएशन नहीं है 10 किलोमीटर हाइट के लिए भी, बराबर है। अर्थ के रेडियस इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में देयर इज अ डिफरेंस, कितना 22 किलोमीटर देखा है, तो वेरिएशन कितना होगा, अराउंड 0.06 इतना होगा, which is also again negligible in comparison to 9.8. 0.06 is negligible in comparison to 9.8, इसलिए वहां पे हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते थे फॉर आवर स्टडी पर्पसेस। ओके, तो ये हो गया वेरिएशन जी विद हाइट, क्लियर। इसको ग्राफिकली हम लोग बाद में देखते हैं, डेप्थ को डिस्कस कर ले बाद में। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग वेरिएशन जी विद हाइट, देख लो इसको। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन जी विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस द वेरिएशन जी विद डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये अर्थ है, बराबर है, ये अर्थ का रेडियस आर बोल देते हैं, आर ई। हम लोग अभी क्या करें, वी आर एज्यूमिंग द बॉडी टू बी एट अ डेप्थ, बॉडी कहां पे, लेट सपोज यहाँ पे, वी आर टेकिंग दिस पॉइंट, यानी एट अ डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये बॉडी पे कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, पहली बात ये ध्यान समझ लो, कौन फोर्स लगाएगा, तो दिस मच पार्ट ऑफ द स्फीयर विच इज ऑन द इनर साइड विल बी अप्लाइंग फोर्स, क्योंकि आउटर पार्ट वाला जो ये शेडेड पोर्शन बनता है विल नॉट बी एक्सर्टिंग एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस। व्हाई, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था हॉलो स्फीयर, खाली इतने पार्ट को ले लो तो ये हॉलो स्फेरिकल शेल हो गया, ओनली दिस पार्ट, तो उसके कारण यहाँ पे तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। तो द शेडेड पोर्शन समवट सिमिलर टू अ स्फेरिकल शेल which cannot exert any gravitational force on the body inside, ये हमने पढ़ा हुआ है कि at any point inside the spherical shell gravitational force is 0, तो यहाँ पे gravitational force शेल के कारण 0 हो गया।
पर इनर पार्ट जो है ये उसके कारण तो रहेगा ही। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी एट अ डेप्थ डी विल बी ड्यू टू दिस इनर पोर्शन ओनली, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टली शेडेड पोर्शन बता रहे हैं, इसके कारण ही लगेगा। अब ये मास तो अर्थ के मास इतना होना नहीं है, चलो हम लोग इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल आर बोल देते हैं, स्मॉल आर बोल देते हैं। तो स्मॉल आर क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर ई माइनस डी, स्मॉल आर विल बी आर ई माइनस डी। ओके, नाउ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन बॉडी लाइन at a depth d from surface of earth, अर्थ के सरफेस से डेप्थ डी पे है, तो फोर्स कितना, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, किसके कारण लगेगा, स्फीयर के कारण। तो स्मॉल जी एट अ डेप्थ डी विल बी इक्वल टू जी एम ई, नहीं जी एम ई नहीं ले सकते ना यहाँ पे, तो यहाँ अर्थ का पूरा मास नहीं है, इसे इसको लोग एम डैश लिख देते हैं खाली। ये किसका मास, ऑफ द शेडेड पोर्शन, हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन अपॉन आर स्क्वायर। चलो मैं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए बाहर का स्फेरिकल शेल वाला शेडेड पोर्शन निकाल देता हूं। तो ओनली दिस शेडेड पोर्शन विल बी अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी, जिसका मास m डैश है एंड उसका रेडियस इन डिस्टेंस r हुआ सेंटर से। ओके, नाउ हियर m डैश कितना होगा, मास है, तो इट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड दैट इज डेंसिटी, वॉल्यूम कितना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी रो है अर्थ का, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये हो गया, रख देते हैं यहाँ पे। तो g एट अ डेप्थ d विल बी इक्वल टू g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। सो व्हाट दिस कम्स आउट टू बी 4/3 पाई g रो, कॉन्स्टेंट सारे ले लिए साथ में, आर क्यूब आर स्क्वायर में से एक आर बचा, ये हो गया वैल्यू ऑफ g एट अ डेप्थ d, बराबर है। लेट्स से इक्वेशन 1, देन फॉर r इक्वल टू आर ई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, चलो इसको ये लिखता हूं ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि कंपैरिजन में सरफेस ऑफ अर्थ के साथ करना है, तो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ r इक्वल टू आर ई, तो इसी फॉर्मूला में r इक्वल टू आर ई रख देते हैं। तो देयरफॉर g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 4/3 पाई g रो इनटू आर ई। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2, इसी के बेस पर से लिख दिया, बराबर है। नाउ डिवाइडिंग 1/2, तो g एट अ डेप्थ d, सॉरी, देयरफॉर g एट अ डेप्थ d अपॉन जी ई विल बी इक्वल टू 4/3 पाई जीरो, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, r अपॉन आर ई। तो देयरफॉर वी कैन से दैट g एट अ डेप्थ d विल बी इक्वल टू g इंटू r अपॉन आर ई, r अपॉन आर ई हो गया। नाउ एज स्मॉल r is r e by n, so therefore g at a depth d will be equal to g e into r e minus d upon r e, can be written as g e into 1 minus d upon r e, g at a depth d, ये फॉर्मूला मिला वेरिएशन g with depth। now as d increases, तो with increase in d, with increase in depth d, d बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, सेकंड टर्म बढ़ेगा, माइनस साइन है, तो होल ब्रैकेट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, g decreases, so with the increase in depth value of g decreases। अच्छा इसको अगर ले लो तो एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर d इज इक्वल टू आर हो जाएगा, डेप्थ कितना होगा, आर कितना हो जाएगा, तो सोचो g का वैल्यू क्या बनेगा, g एट अ डेप्थ यानी g एट सेंटर क्या बनेगा, g एट सेंटर विल बी 0। तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशन एक्सेशन 0 होता है, ये साइड में ले लिया इसी फॉर्मूला पर से, d को r ही ले लो तो ये 1 हो गया, 1 - 1 0, तो g एट डेप्थ, g एट सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी 0, यानी सेंटर पे ग्रेविटेशन एक्सेशन 0 होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी g की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग वेरिएशन g विद डेप्थ, देख लो चलो इसको। फिर आगे चलते हैं हम लोग, वेरिएशन g विद हाइट एंड डेप्थ दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ वी सी द कंपैरिजन ऑफ g एट हाइट h एंड g एट डेप्थ d, यानी हम लोग दोनों वेरिएशन यहाँ पे कंपेयर कर सकेंगे। चलो देखते हैं फॉर्मूला। तो एट हाइट h
from surface of earth, at height h from surface of earth, g is given as g, that is x is on surface of earth, into 1 minus 2h upon r, ये आ गया। फिर एट अ डेप्थ d फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ये दूसरा कंपेयर करते हैं इसके, ये क्या आता है, तो g एट अ डेप्थ d इज ऑब्टेन्ड एज g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब देखो तो दोनों लगता है कि दोनों सिमिलर है। नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, द ओनली डिफरेंस इज 2, ये 2 है, यानी हाइट के साथ g डिक्रीज होता है, डेप्थ के साथ भी g डिक्रीज होता है, बट डिक्रीज इन g विद हाइट इज डबल, 2 टाइम्स फास्टर। तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी ये अर्थ है, अर्थ के सर्फेस जैसे जैसे ऊपर जाओगे h बढ़ेगा, g डिक्रीजेस। अर्थ के सर्फेस जैसे जैसे अंदर जाओगे d बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगा, अगेन g डिक्रीजेस। पर दोनों डिक्रीज में फर्क क्या है, डिक्रीज इन g विद हाइट इज फास्टर एज कंपेयर टू दैट विद डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे देखो फैक्टर 2 टाइम्स है, h अपॉन आर डी अपॉन आर, कहा यहाँ पे 2 टाइम्स है, देखो तो मतलब क्या हुआ, ये फास्टर डिक्रीज होगा। तो वेरिएश डिक्रीज इन g विद हाइट इज फास्टर एज कंपेयर टू दैट विद डेप्थ। तो अगर 10 किलोमीटर ऊपर गए सरफेस से और दूसरा 10 किलोमीटर नीचे गए सरफेस से ऊपर जाने में वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगा, नीचे आने में कम डिक्रीज होगा, बराबर है। अब हम इसको ग्राफिकली बताते हैं, ये रिलेशन को ग्राफिकली बताते हैं। तो ग्राफ बना रहे हम लोग जी का इन कंपेरिजन, साथ में कनेक्टेड ले रहे हैं आर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे जी का वेरिएशन कैसा हो देख रहे हैं। आप ध्यान से समझो, r इक्वल टू जी, r इक्वल टू 0 ले लो, मतलब कहां पर हो, सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ, r इक्वल टू 0 ले लिया तो सेंटर ऑफ अर्थ, r इक्वल टू r ही ले लो, ये r यानी क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर r ही है तो मतलब ऑन सरफेस है, ऑन सरफेस, तो ये आर ई से कम वैल्यू डेप्थ की बात हो गई, एंड आर ई से ज्यादा वैल्यू हाइट की बात हो गई, बराबर है। आर ई से कम वैल्यू डेप्थ, आर ई से ज्यादा वैल्यू हाइट की बात हो गई, हाइट की बात हो गई, बराबर। तो वी नो दैट सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, द जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैक्सिमम कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया हुआ है, ओके। फिर सरफेस से जैसे जैसे अंदर आते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जी की वैल्यू डिक्रीज होता है एज वी कम एंड गो इन द डेप्थ, एंड वो भी कैसा रिलेशन, सिंगल। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तुम लोग ऐसा कैसे हो गया, तो याद करो जी का फॉर्मूला एट अ डेप्थ डी वॉज 4/3 पाई जी रो इंटू आर। तो जी का रिलेशन विद आर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बराबर है। तो ये बताता है जी डिक्रीजिंग विद डेप्थ, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। और फिर सरफेस से ऊपर जा रहे हाइट पे, तो हाइट पे भी जी डिक्रीज होता है, कैसा, फास्ट डिक्रीज। ये क्यों आ रहा है ऐसा, तो यहां पे याद करें फॉर्मूला जी एट हाइट एच का, जी एट हाइट सॉरी जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर ना, फॉर्मूला क्या था, चलो याद कराता हूँ, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये जी का फॉर्मूला रिलेशन जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हो गया जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन आर, एंड ये जीरो कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। दिस जी विल बी जीरो ओनली एट व्हेन आर इज इंफिनिटी, એટલે ग्राफ कहीं टच नहीं करेगा आर एक्सिस को, will never touch r axis एकदम पैरेलल, टच नहीं हो रहा है, टच कहां पे होगा, इंफिनिटी पे, ले ग्राफ में खास ध्यान रखना यहां पे टच नहीं हो, ओके। ये क्या बताता है, ध्यान से इस ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। सरफेस पे जी का वैल्यू मैक्सिमम है, डेप्थ में जाओ तो जी डिक्रीज होता है, सरफेस से ऊपर जाओ तो भी जी डिक्रीज होता है, हाइट पे जाओ तो भी डिक्रीज होता है। ये सरफेस के रिस्पेक्ट में बात हो गई, ऊपर जाओ तो भी डिक्रीज, नीचे आओ तो भी डिक्रीज। अब
अर्थ के सेंटर से शुरू करते हैं कहानी। अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे बाहर निकलते हैं, तो एज यू मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, एज यू मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, जी इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेंटर पे 0, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यहाँ पे 9.8 हो गया मैक्सिमम, बराबर है। ये रिलेशन विद इंक्रीज इन आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, जी इंक्रीजेस। फिर सरफेस से ऊपर जाएंगे और रिलेशन ये आ जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एज यू मूव फ्रॉम द सरफेस इट स्टार्ट्स ऑन डिक्रीजिंग, बराबर है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से शुरू करो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ से जैसे आगे बढ़ोगे सरफेस ऑफ अर्थ तक इंक्रीज होगा, फिर बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेंटर से चालू करें तो जैसे आगे जाओगे जी की वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये कॉर्ड है, इसमें फास्टर डिक्रीज बता रहा है, इसमें अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में लो तो दोनों तरफ डिक्रीज हो रहा है। सेंटर से चालू करो तो सेंटर पे 0, इंक्रीजिंग टिल सरफेस एंड देन डिक्रीजिंग। ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वी आर ऑब्जर्विंग। एक तो आप सरफेस पे खड़े हो और देख रहे हो ऊपर जाते हो नीचे जाते हैं, दूसरा आप सेंटर पे खड़े हो और देख रहे हो जी का वेरिएशन। सो टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सेम फिनोमेनन। यही तो फिजिक्स की खासियत है, यहाँ पे हम लोग सेम फिनोमेनन को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, एंड जिसको हम लोग रिलेटिविटी बोलते हैं। एंड वी फाइंड दैट द ऑब्जर्वेशन चेंजेस एज सून एज यू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा जैसे जैसे चेंज होगा डिस्क्रिप्शन चेंज होता है। बाकी फिनोमेनन वही का वही है, डिस्क्रिप्शन चेंजेस। यहाँ पे भी फिनोमेनन वही है, यहां से देखो तो अलग कहानी, यहां से देखो तो अलग कहानी। दोनों बातें बिल्कुल सही है एंड दोनों बातें एक ही चीज कह रही है। ये ग्राफ में जो वेरिएशन होता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग 12th में पहले चैप्टर में इसका यूज करने वाले हैं। ओके, चलो गो थ्रू दिस। सो व्हाट वी स्टडीड टुडे। अच्छा, जो एक पॉइंट बाकी है तो ये देख लो, फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स टेक वन मोर थिंग, दैट इज वेरिएशन जी विद द लैटिट्यूड। ये एक्स्ट्रा है, ये बुक में अवेलेबल नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है, पर हम इसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहीं पे जी के क्वेश्चन में, जी नीट में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे अप्लाइड फॉर्म में आ जाए तो यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ इट। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक इक्वेशन डायरेक्टली लेंगे, विल नॉट गोइंग टू डेरिवेशन ऑफ दैट, जैसे डेप्थ और हाइट के लिए किया वैसा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक आइडिया ले लेंगे व्हाट इट इज। हमने अभी तक पढ़ा वेरिएशन जी विद हाइट, जिसको दूसरे वर्ड में ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइट मीन्स ऑल्टीट्यूड। दूसरा स्टडी क्या, वेरिएशन विद डेप्थ। आप तीसरा लेने विद लैटिट्यूड। आप क्वेश्चन ये उठता है लैटिट्यूड क्या होता है, तो वी नो दैट अर्थ की पोजीशन को मेजर को पॉइंट आउट करने के लिए a reference frame has been created on the surface of earth by the scientist, जिसमें अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक अपर हाफ एंड दूसरा लोअर हाफ। अर्थ इज अ ह्यूज स्फीयर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। फिर वर्टिकली लॉन्गिट्यूड्स बनाए, हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूड्स बनाए। तो लैटिट्यूड क्या चीज है, जस्ट एक आइडिया लेते हैं। तो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का इक्वेटर, ये अर्थ का इक्वेटर हो गया। तो अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर लेते हैं, ये इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ ऑन द इक्वेटर, तो ये इक्वेटोरियल डायमीटर हो गया। इक्वेटोरियल डायमीटर के रिस्पेक्ट में, इक्वेटोरियल डायमीटर के रिस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन, ये पी पॉइंट कहां पर है, तो उसको यूं ज्वाइन करके बोलता है ये एंगल पे है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड लैम्बडा, लैटिट्यूड। दिस एंगल इज कॉल्ड लैटिट्यूड लैम्बडा। यानी कि फॉर इक्वेटर लैम्बडा इज 0, फॉर पोल्स लैम्बडा इज 90 डिग्री। चला, ये ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ लेते हैं, ऊपर लेते हैं तो नॉर्थ लिखते हैं एंड नीचे लेते हैं तो लैम्बडा इज 90 डिग्री साउथ पोल के लिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो एंगल ऑफ द पोजीशन मेड विद द इक्वेटोरियल डायमीटर इज नथिंग बट लैटिट्यूड। तो यहां से 0 से शुरू होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पे आते हैं 90 डिग्री होता है लैटिट्यूड। ये ज्योग्राफी में हमने देखा हुआ है, पर ये अरेंज के साइंटिफिकली। ओके, नाउ G का वेरिएशन विद लैटिट्यूड, द फॉर्मूला कम्स समवट लाइक दिस, G लैम्बडा इज इक्वल टू GE माइनस RE इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। यहां पे G यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस ऑफ अर्थ जो 9.8 लेते हैं वो, फिर RE रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये हो गया एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, लैम्बडा इज द लैटिट्यूड। अब यहां पे बराबर कॉल लैम्बडा इज द लैटिट्यूड। ये फॉर्मूला कैसा है, वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ इट,
पर इसके केस देखो तो ये वेरिएशन जी विद लैम्बडा बताता है। एज लैम्बडा इंक्रीजेस cos square cos lambda will decrease. क्यों? Cosine is a decreasing function in first quadrant 0 से 90, cos 0 is 1 and cos 90 is 0, यानी decreasing function है तो cos lambda decreases, therefore cos square lambda decreases, cos square lambda decrease होगा तो this whole will decrease, माइनस में तो therefore g lambda will increase. तो as the latitude increases from 0 to 90 degree, value of g increases. Okay, value of g increases. अब केसेस देखिए इसके तो पहला एट इक्वेटर पे वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इक्वेटर पे लैम्बडा इज 0, देयरफॉर cos लैम्बडा विल बी 1, तो देयरफॉर g एट इक्वेटर विल बी इक्वल टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये 1 है ना इसलिए। फिर एट पोल्स lambda equal to 90 degree, so therefore cos lambda will be 0 at the poles. cos 90 is 0 ना, तो ये 0 हो गया ना, ये टर्म 0 हो गया, तो therefore g at poles is equal to g, यानी कि इक्वेटर पे माइनस समथिंग है इसलिए कम वैल्यू, पोल्स पे जाता वैल्यू, therefore we can say that g at poles is more than that at equator. ओके, दैट इज मोर देन दैट एट इक्वल। जो आगे हमने कंसेप्ट लिया था आरी रेडियस ऑफ अर्थ के बेस पर से, वो यहाँ पे लैटिट्यूड के टर्म्स में ले लिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया है, नॉट गोइंग टू मच डिटेल्स ऑफ इट, पर ये इसीलिए दिया मैंने आपको कि इन केस कोई कंप्यूटर एग्जाम में इसका कोई एप्लीकेशन प्रकट हो गया तो यू कैन एटलीस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। नो डाउट हमारे सिलेबस में नहीं है, स्कूल की, स्टेट बोर्ड की, सीबीएसई कोई भी एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, पर ये जस्ट अपने नॉलेज के लिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये मैंने खास ऊपर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ओके, so what we so in this lecture what we did, I told you in the beginning, we saw about gravity एक्सप्रेशन, सारी बातें gravity एक्सप्रेशन स्मॉल जी की क्या है, उसका फॉर्मूला लिया, अलग अलग उसके केसेस लिए, फिर उसका वेरिएशन विद हाइट फ्रॉम सरफेस और डेप्थ फ्रॉम सरफेस और एंड लैटिट्यूड लैम्बडा, सबको कंपेयर भी कर लिया हमने। ओके, तो ये कंप्लीट लेक्चर रिगार्डिंग छोटा जी।